بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تم مجھے نادان سمجھ کر یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ یہ ناٹک ہے؟ میری ماں نے یا بہن نے خود یہ گریبان پھاڑا ہے، اور میری بہن کے گالوں پر آپ تمانچوں کے نشان بھی پڑ گئے ہیں۔ میں آج تک تم سے دھوکہ کھاتی رہی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پارس نے اچانک اسے ایک طرف دھکا دے کر فائر کیا۔ خانم موقع غنیمت جان کر ہتھیاروں کے پاس جا رہی تھی۔ گولی چلتے ہی چیخ مار کر دوسری طرف جا گری۔ وہ بولا، دیکھو یہ تمہاری ماں کا ڈرامہ ہے، تمہارے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کی، پھر ہمیں آپس میں الجھا کر ان ہتھیاروں تک پہنچنا چاہا۔ خانم فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولی، ہاں میں ہتھیاروں تک پہنچنا چاہتی ہوں، مجھے صرف ایک رائفل یا ریوالور دو، میں زرینہ کو گولی مار کر خود مر جاؤں گی، مگر تمہارا ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ یاسمینہ روتے ہوئے بولی، ممی مجھے معاف کر دیجئے، میں اس فریبی سے اب دھوکہ نہیں کھاؤں گی، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کروں گی۔ اس ہوس پرست نے میرے بعد اب میری بہن پر میلی نظر ڈالی ہے، میں اسے مار ڈالوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ وہ غصے اور نفرت سے دوڑتی ہوئی ہتھیاروں کی طرف آئی۔ اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ پڑا۔ وہ چیخ مار کر لڑکھڑاتی ہوئی ماں کے پاس آ گئی۔ ہتھیاروں کے سامنے کمی تن کر کھڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، یاسمینہ شاید پارس تمہارا لحاظ کرے گا لیکن میں نہیں کروں گی۔ اگر تم جان پر کھیل کر ہتھیار حاصل کرنا چاہو گی تو اس سے پہلے میں تمہاری ماں اور بہن کو گولی مار دوں گی۔ تمہارے جان پر کھیلنے سے پہلے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ مریں گی۔ یقین نہ ہو تو ادھر ایک قدم بھی بڑھا کر دیکھ لو۔ یاسمینہ کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ یہ بے غیرتی اور بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ پارس اس کے حسن و شباب سے کھیلنے کے بعد اس کی بہن کے گریبان تک پہنچے۔ وہ سچ مچ پارس کو گولی مار کر خود مر جانا چاہتی تھی، لیکن یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اور بہن کمی کے ہاتھوں ماری جائیں۔ اس لیے وہ پارس کو نفرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بولا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی ہی ماں کے فریب میں آ گئی ہو۔ یہ میرے لیے سبق حاصل کرنے کی بات ہے کہ ایسی لڑکی کے ساتھ ازدواجی زندگی نہیں گزارنا چاہیے جس کا باپ خر دماغ ہو اور ماں ایک طوائف کی طرح اپنی بیٹی سے ننگا ڈرامہ پلے کرواتی ہو۔ تم لوگوں کو ایک جزیرہ انعام میں مل گیا، لیکن شرم اور شرافت کبھی انعام میں نہیں ملا کرتی۔ اس کے لیے اچھا خاندان، اچھی پرورش اور اعلیٰ ظرفی لازمی ہوتی ہے، اور یہ تمہارے خاندان میں نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وقت سے پہلے آنکھ کھل گئی اور تم سے نجات مل رہی ہے۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، میں علی تیمور کی ذہانت کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایک لڑکی سے دور رہ کر 1000 پریشانیوں سے دور رہا جا سکتا ہے۔ یہی دیکھ لو، صرف تمہاری خاطر میں نے اس جزیرے میں اتنا وقت برباد کیا اور اپنے دن رات کا سکون غارت کرتا رہا۔ بہرحال اب تم بھی اپنی ماں اور بہن کی طرح صرف ایک قیدی ہو۔ اس نے کمی سے کہا، ان ماں بیٹیوں کے لیے تمہاری جیسی ظالم عورت ہی مناسب ہے۔ میں چھت پر جا رہا ہوں، میری واپسی تک ان میں سے کوئی مصیبت بننا چاہے تو اسے گولی مار دینا۔ اس نے ہتھیاروں کے پاس جا کر ایک سٹین گن لی، کارتوس کے کئی بیلٹ اٹھائے، پھر وہاں سے باہر چلا گیا۔ علی تیمور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر، ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا ہوا شوٹنگ رینج سے دور نکل آیا تھا۔ ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، ایسے میں درختوں کی شاخوں اور پتوں نے اسے گولیوں کی بوچھاڑ سے بچایا تھا۔ اس نے بھی بچاؤ کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت دور نکل آنے کے بعد ایک درخت کی شاخ پر رک گیا۔ اسے خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ دشمنوں سے بچ نکلا ہے۔ فائرنگ رک گئی تھی، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی تھی۔ اس نے پوزیشن بدل دی۔ وہ درخت سے چھلانگ لگا کر قریبی چٹان پر آیا، پھر دور تک نظریں دوڑانے لگا۔ تعاقب کرنے والوں میں سے کچھ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سٹین گن شانوں سے لٹکا کر اپنے اپنے ریوالور پر سائلنسر لگا رہے تھے، کیونکہ ادھر پارس نے دھمکی دی تھی کہ کمی اور علی پر فائرنگ کی گئی تو وہ خانم اور زرینہ کو گولی مار دے گا۔ سلمان رازی نے پارس کو دھوکہ دینے کے لیے فائرنگ بند کروا دی تھی، لیکن چپ چاپ حکم دیا تھا کہ سائلنسر لگا کر علی تیمور کو شکار کیا جائے۔ علی نے دیکھا وہ سائلنسر لگانے کے بعد چٹان کی طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ چٹان کے پیچھے لیٹ گیا۔ ادھر اونچی نیچی پتھریلی زمین تھی۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا کچھ دور ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے آیا۔ اسی پتھر کے پیچھے ایک شخص ریوالور لیے رینگتا آ رہا تھا۔ دونوں کا اچانک سامنا ہوا۔ دونوں اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے گولی چلائی۔ وہ لیٹے ہی لیٹے کلا بازی کھا کر اس کے اوپر آیا، پھر اسے دبوچ لیا۔
उसकी गर्दन पर कराटे का फौलादी हाथ जमाया। बस एक ही हाथ में गर्दन ढलक गई। उसने रिवॉल्वर और कारतूस की पेटी ली, फिर रेंगता हुआ दूसरी चट्टान के पीछे आया। करीब ही कोई कह रहा था, वो इसी तरफ कहीं छुपा हुआ है, तुम उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूं। वो इधर आया और अली की गोली का निशाना बन गया। उसने दूसरा रिवॉल्वर और कारतूस की पेटी भी रख ली। पता नहीं ये मुकाबला कब तक जारी रहने वाला था। वो एहतियातन ज्यादा हथियार पास रखना चाहता था। यह एहतियात बाद में दुरुस्त साबित हुई। जंगल और उस पहाड़ी के हिस्से में 2 घंटे तक खामोश फायरिंग का तबादला होता रहा। वो उनसे आंख मचोली खेलता रहा, फिर उन्हें डॉज देकर पहाड़ी के पीछे आ गया। ये वही जगह थी जहां गुज़श्ता रोज वो जरीना को अगवा करके हेलीकॉप्टर में सुपरमास्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन पारस रास्ते की दीवार बन गया था। वहां जबरदस्त जंग हुई थी। पारस ने हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। वहां जो कॉटेज था वो भी खंडर बन गया था। उस खंडर में सलमान राजी दिखाई दे रहा था। अली ने दबे कदमों आगे बढ़कर देखा। राजी के साथ 2 मुसल्ला गार्ड्स भी थे। वो ट्रांसमीटर के जरिए कह रहा था, अली तैमूर इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। मैं पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में हूँ। यहाँ 50 जवानों को फौरन भेजो। उस शैतान के बच्चे पर इधर से भी हमला होना चाहिए। ओवर एंड आउट। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया। उसी वक्त एक मुसल्ला गार्ड चीख मारकर उछला, फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून बता रहा था कि साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर उसके अपने ही आदमी पर इस्तेमाल हो रहा था। वो खतरा महसूस करते ही शिकस्ता दीवारों की आड़ में जाना चाहते थे। इतनी देर में दूसरा गार्ड भी गोली खाकर गिर पड़ा। सलमान राजी एक दीवार के पीछे अपनी स्टैन गन के साथ तैयार था। अली ने कहा, राजी तू अकेला रह गया है। अकेला मैं भी हूं, फिर एक दूसरे से छुपने की क्या जरूरत है। राजी ने अचानक दीवार की आड़ से निकलकर आवाज की समझ स्टैन गन का एक बर्स्ट मारा, फिर उछलकर दूसरी दीवार के पीछे चला गया। उसकी तमाम गोलियां जाया हो गई थीं। उसे अली की आखिरी चीख सुनाई नहीं दी थी। वो दबे कदमों दूसरी तरफ जाने लगा। तब उसे आवाज सुनाई दी, मैं उधर नहीं इधर हूं। उसने घबराकर छत की तरफ देखा। पिछले रोज धमाके से छत उड़ गई थी। ऊपर एक खाली दीवार पर अली खड़ा हुआ था। वो जितनी देर में स्टैन गन का रुख ऊपर करता, खामोश रिवॉल्वर से गोली चली, फिर उसके हाथ से स्टैन गन निकल गई। अली ने कहा, होस्टर से रिवॉल्वर निकालने की हमाकत ना कर, बल्कि दीवार की तरफ मुंह कर ले और बड़ी सहूलत से रिवॉल्वर निकालकर दूर फेंक दे। वो दूसरी तरफ घूम गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्वर को होल्स्टर से निकालने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह होल्स्टर से बाहर आया, उसने अचानक जमीन पर गिरकर ऊपर की तरफ फायर किया, लेकिन मायूसी हुई, अली वहां नहीं था। तब समझ में आया कि उसने मुंह घुमाकर रिवॉल्वर निकालने को क्यों कहा था। अचानक उसके रिवॉल्वर को झटका सा लगा। खामोश गोली ने उस रिवॉल्वर को भी उसके हाथ से गिरा दिया। अली तैमूर ने एक दीवार की आड़ से निकलकर कहा, इसी तरह आराम से जमीन पर लेटे रहो और समझते रहो तुम एक छोटे से जजीरे के आका हो। बड़े बड़े शहंशाह भी एक दिन इसी तरह मिट्टी में पहुंच जाते हैं। उसने करीब आकर रिवॉल्वर को ठोकर मारते हुए दूर किया। उसकी कमर से शिकारी चाकू निकालकर उसे भी दूर फेंक दिया। फिर कहा, मगरूर आका, तुम मेरे कदमों में हो। मैंने तुम्हारी तमाम ताकत छीन ली है। अब जिस्मानी कुव्वत रह गई है। मैं उसे आजमाने का पूरा मौका दूंगा। उसने पीछे हटकर अपने दोनों रिवॉल्वर्स दूर फेंक दिए। कमर से कारतूस की पेटी भी अलग कर दी। सलमान राजी तेजी से उठ बैठा, फिर उछलकर खड़ा हो गया। पलक झपकते ही उसने उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। अली ने जरा झुककर उसे फजा में कैच कर लिया। उसी तरह दोनों हाथों पर सर से बुलंद किए एक गोल चक्कर लगाकर जमीन पर आराम से उतार दिया। फिर कहा, तुझे अपनी इंसल्ट का बहुत ख्याल आता है। मैं तुझे हाथों में उठाने के बाद दीवार पर दे मारता, मगर दीवार की इंसल्ट होती। तूने जिंदगी में जितने दाव पेच सीखे हैं और जितनी ताकत हासिल की है, उन सबको आजमा ले। मैं वादा करता हूं, अगर तू मुझे एक हाथ भी मारने में कामयाब हो गया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। सलमान राजी सचमुच अपनी इंसल्ट महसूस कर रहा था। अली ने उसे इतने आराम से जमीन पर उतार दिया था जैसे उसे बच्चा समझ रहा हो, और अब चैलेंज कर रहा था कि वो उसे एक हाथ भी नहीं मार सकेगा। उसने अचानक एक हाथ मारा, लेकिन उस हाथ की कलाई गिरफ्त में आ गई। फिर वो कलाई यूं मुड़ गई कि वो जूडो के दाव से गुजरता हुआ दूर जाकर जमीन पर चारों शाने चित हो गया। जहां वो गिरा वहां करीब ही उसका रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। उसने फौरन करवट बदलकर रिवॉल्वर पर हाथ मारा। उसी लम्हे अली उछलकर उसके हाथ पर आ खड़ा हुआ। उसके हलक से चीख निकली,
कई उंगलियों की हड्डियां किड़कड़ाई थीं। वो फिर उछलकर दूर हो गया। सलमान राजी का हाथ अब भी रिवॉल्वर पर था, मगर वो उसे उठा नहीं सकता था। उंगलियां टूट गई थीं। अली ने उसकी जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर कहा, इसे दूसरे हाथ से ऑपरेट करो। अपने मातहत अफसर से कहो, इधर जो 50 जवान आ रहे हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। अली तैमूर जजीरे के किसी दूसरे हिस्से में चला गया है। वो तकलीफ से कराहते हुए बैठ गया। अली ने कहा, पहले कराहना बंद करो। अगर तुम्हारे किसी आदमी को शुबा होगा और वो इधर आएगा तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। उसने तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए उस मातहत अफसर से राबिता कायम किया जो 50 जवानों के साथ इधर आ रहा था। वो अपने आका का दूसरा हुक्म सुनकर रुक गया, फिर बोला, मैं अली तैमूर को तलाश करने दूसरी तरफ जा रहा हूँ। सलमान राजी ने ओवर एंड आउट कहकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। अली ने एक रिवॉल्वर उठाकर कहा, तुम्हारा दायां हाथ बेकार हो चुका है, क्या बाएं हाथ से मेरा निशाना ले सकते हो? वो जिल्लत के एहसास से कांपते हुए बोला, खुदा की कसम, एक बार ये रिवॉल्वर हाथ में आ जाए तो इसकी एक गोली भी ज़ाया नहीं करूँगा, सब की सब तुम्हारे नापाक वजूद में उतार दूंगा। वो बोला, दुनिया जानती है फरहाद अली तैमूर ज़ुबान का धनी है, उसे जान की बाजी लगाकर भी निभाता है। मैं अपने बाप की कसम खाकर ज़ुबान देता हूँ, अगर तुम मुझसे पंजा लड़ाने में जीत जाओगे तो ये रिवॉल्वर तुम्हें दे दूंगा। सलमान राजी फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसके दाएं हाथ में शदीद तकलीफ थी, लेकिन उसमें बर्दाश्त करने का हौसला था। दोनों ने अपने अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। सलमान राजी ने फौरन ही पूरी ताकत सर्फ करते हुए उसकी उंगलियों को मोड़ना चाहा तो कुछ परेशान सा हो गया। उसे महसूस हो रहा था उसकी उंगलियां लोहे की सलाखों में फंस गई हैं। अली बोला, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ, मैं सिर्फ एक बार जोर लगाऊंगा, सिर्फ एक बार। सलमान राजी को याद नहीं था कि उसने आज तक कितने शाहजोरों से पंजा लड़ाया है, लेकिन ये याद था कि उसने आज तक किसी से शिकस्त नहीं खाई थी। उसने सोचा था हमेशा जीतने का ये हुनर आज काम आएगा और वो रिवॉल्वर जीत लेगा, मगर अब वो पसीने पसीने हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपनी उंगलियां छुड़वाने की कोशिश करने लगा। अली ने कहा, इसका मतलब है तुम अपने हिस्से का सारा जोर लगा चुके हो, अब निजात चाहते हो। ये कहते ही उसने एक जोर का झटका दिया। राजी के हलक से चीखें निकलने लगीं। अली ने वाट्सरो की जिंदाबाद कहकर उसे छोड़ दिया। उसकी 4 उंगलियों की हड्डियां टूट गई थीं। वो तकलीफ की शिद्दत से इधर से उधर डगमगा रहा था। हथियारों के पास से भी गुजर रहा था, मगर किसी हथियार को छू भी नहीं सकता था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां बेकार हो गई थीं। अली ने कारतूस की पेटी दोबारा कमर से बांधते हुए कहा, मुझ में और पारस में एक बड़ा फ़र्क है। वो हमा वक्त तफरीह के मूड में रहता है, मैं कभी वक्त ज़ाया नहीं करता। अगर मैं पहले ही दिन तरमीमी अमल के असर में ना होता तो वही पहला दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। मैं उसी दिन इस मनहूस जजीरे से निकल जाता। उसने एक रिवॉल्वर उठाया, फिर स्टेन गन शाने से लटकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे हेलीकॉप्टर में बैठकर इस जजीरे से निकल जाएंगे और तुम जो हमें ताबेदार बनाने वाले थे, बड़ी ताबेदारी से हमारी रवानगी का इंतज़ाम करोगे। चलो। उसके दोनों हाथ बेजान होकर शानों से लटके हुए थे। वो इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर अपने मातहतों को मुंह नहीं दिखाना चाहता था। अली ने उसकी गर्दन पकड़कर आगे धक्का दिया। वो ज़रा लुढ़खड़ाया, फिर बोझल कदमों से उसके आगे आगे चलने लगा। पहाड़ी के दामन में वो गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें वो 2 मुसल्लह गार्ड्स के साथ आया था। वो तकलीफ की शिद्दत से कांपते हुए बोला, पहले मुझे तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, मैं तुम्हें इंसानियत का वास्ता देता हूं। वो गर्दन दबोच कर बोला, इस बुलंदी से धक्का दूंगा तो कटे हुए शहतीर की तरह लुढ़कते हुए नीचे जाओगे। इंसानियत का वास्ता पारस को देना हो सकता है, वो ससुराली रिश्ते का कुछ ख्याल करे। मैं ऐसी बीमारियां नहीं पालता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हम भाइयों को जजीरे से जाने दो। जाने में कोई रुकावट होगी तो दोनों पांव भी तुम्हारे टूट जाएंगे। जजीरे के आका ने उसे बेबसी से देखा, फिर सबल सबल कर पहाड़ी से उतरने लगा। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि जजीरे में अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए अपने होने वाले दामादों को रुखसत कर देना ही बेहतर है। फिर उसकी हाकमाना और जालिमाना फितरत कहने लगी, नहीं, अगर अपनी ज़िल्लत और बेइज्जती का इंतकाम ना लिया और इन्हें जाने दिया तो सर हमेशा झुका रहेगा। इतने बड़े जजीरे का मालिक झुके हुए सर से हुकूमत नहीं कर सकेगा। इन दोनों के हाथ पांव तोड़ने के बाद ही उन्हें जजीरे के बाहर फेंका जाएगा। वो सबल सबल कर पहाड़ी से उतर गया। अली ने कहा,
तुम किसी हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल सकोगे, फिर किस तरह अंदर बैठोगे? वो झुंझुला कर बोला, तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। क्या मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकते? मैं तुम्हारी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम नहीं हूँ। अगर पाँव से खोलकर अंदर बैठ सको तो अच्छी बात है, वरना मैं गाड़ी में बैठूंगा और तुम आगे आगे दौड़ते जाओगे। हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर ऐसा नहीं करूंगा। तुम मुझे जलील करने के लिए मुझे मेरी रियाया के सामने अपने आगे कुत्ते की तरह दौड़ाना चाहते हो। मैं आदमी की तरह दौड़ने को कह रहा हूँ, मगर कुत्ता आखिर कुत्ते ही की तरह दौड़ने की बात सोचता है। वो गुस्से से गुर्राने लगा, फिर तन कर बोला, मुझे गोली मार दो, मैं यहाँ से जाकर किसी से आंखें नहीं मिलाना चाहता। उसने शिकारी चाकू निकाल कर कहा, जो हाथों से मजबूर हो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं इस चाकू से तुम्हारा लिबास तार तार करूंगा तो तुम और ज्यादा तमाशा बन जाओगे। फिर भी तुमने दौड़ने से इनकार किया तो लिबास की एक धज्जी भी तुम्हारे बदन पर नहीं रहेगी। उसने बुशर्ट पर चाकू का एक हाथ मारा, उसे ऊपर से नीचे तक चीरता चला गया। वो घबरा कर बोला, मुझे बेलिबास ना करो, मैं दौड़ूंगा। चलो गाड़ी के आगे जाओ और मशरकी मोर्चे तक दौड़ते चलो। वो अपनी बेबसी पर गुर्राता हुआ आगे आया। अगर उसके पांव तोड़ दिए जाते तो वो हाथ से कोई हथियार उठाकर खुदकशी कर लेता। वो अपने लिबास की सलामती के लिए दौड़ने लगा। दोनों हाथों की टूटी हुई उंगलियों से ज़बरदस्त टीसें उठ रही थीं। वो खासी कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था। अगर कुव्वत बर्दाश्त ना होती और वो हौसला हार कर गिर पड़ता तो सयाद उसे लिबास से भी महरूम कर देता। वो आज से पहले कई बार अपने जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ता रहा था। उसके साथ दौड़ने वाले अफसर थक जाते थे, मगर वो दम लेने के लिए कहीं नहीं रुकता था। आज उसे सिर्फ मशरकी मोर्चे तक जाना था जो 1 मील के फासले पर था, लेकिन उसे यूं लग रहा था जैसे वो मीलों दूर से दौड़ता आ रहा हो और ना जाने कितने मील अभी और दौड़ना पड़े। वो डगमगाने लगा था। अली ने कहा, संभल कर दौड़ते रहो, रुकोगे या गिरोगे तो लिबास की धज्जियां उड़ेंगी। वो लिबास की खातिर ही अपनी आखिरी कुव्वत बर्दाश्त से काम लेते हुए मशरकी मोर्चे के करीब पहुंच गया। पारस छत पर स्टेन गन लिए खड़ा था। सलमान राजी के मुसल्ला जवानों ने मोर्चे को चारों तरफ से घेर रखा था। उन्होंने अपने आका को बुरी हालत में हाँफते कांपते देखा तो अपनी राइफलों का रुख अली की तरफ मोड़ दिया। अली ने गाड़ी से उतरकर सलमान राजी को निशाने पर रखते हुए कहा, हथियार फेंक दो, तुम्हारा आका आधा मर चुका है, बाकी आधे के लिए मेरी एक गोली काफी होगी। छत पर से पारस बोला, नादानो, अब किसकी अतात और हिफाजत के लिए हथियार का बोझ उठा रहे हो? उधर तुम्हारा आका और इधर तुम्हारी मलका और मलकाजादियां हमारे कब्जे में हैं। मोर्चे की 4 दीवारी में खानम ने पहले अली तैमूर की जुबान से सुना कि राजी आधा मर चुका है। उसे यकीन नहीं आया। जब पारस ने छत पर से कहा कि उसका पूरा खानदान दोनों भाइयों के कब्जे में आ चुका है तो वो दौड़ती हुई खिड़की के पास आई। वहां से काफी दूर एक खुली जगह पर सलमान राजी खड़ा डगमगा रहा था। फिर वो देखते ही देखते घुटनों के बल जमीन पर आ गया। कोई और होता तो वो ऊंधे मुंह गिर पड़ता, मगर वो संभलने की कोशिश कर रहा था। खानम ने खिड़की से चीख कर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे सर का ताज है, इस जजीरे का आका है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। वो खिड़की से पलटकर दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ आई। वो बाहर राजी के पास जाना चाहती थी। किमी ने उसके मुंह पर एक कराटे का हाथ मारा। वो चीख मारकर पीछे की तरफ चली गई। दोनों लड़कियों ने खिड़की से झांक कर अपने शाजोर बाप को देखा। अली कह रहा था, मैंने तुम्हारे आका के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। अगर 3 गिनने तक तुम लोगों ने एक जगह हथियारों का ढेर ना लगाया तो किमी तुम्हारी मालका के पांव तोड़ेगी। 1, 2। सब एक जगह अपने अपने हथियार लाकर फौरन फेंकने लगे। पारस ने छत पर से कहा, अली, राजी के पूरे खानदान को एक जगह रहना चाहिए। मैं इसकी बीवी और बेटियों को ला रहा हूं और निहत्ते जवानों को हुक्म दे रहा हूं कि वो दूर चले जाएं। पारस छत से उतरकर 4 दीवारी में आया। खानम ने तड़प कर कहा, राजी को फौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता उसे जिंदा रहने दो। हमने बेशक तुमसे दुश्मनी की, मगर खुदा गवाह है, हम तुम्हारी जान के दुश्मन नहीं थे, तुम्हें ताबेदार बनाने के लिए सख्ती से पेश आ रहे थे। पारस ने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी बेगैरत माँ पर तरस नहीं आएगा। तुमने सिर्फ यास्मीना का दिल फेरने के लिए जरीना के साथ एक नंगा ड्रामा प्ले किया। अपने हाथों से अपनी बेटी का गिरेबान फाड़कर मुझे इल्जाम दिया। देखो और इबरत हासिल करो कि किस तरह खुदा की मार पड़ रही है। इन लम्हात में ना तुम्हारे पास इक़्तिदार है, ना ताकत है, ना फौज है। तुम लोगों की इज्जत 2 कौड़ी की ना रही।
चलो अब बाहर चलो। यास्मीना सोचती और पछताती हुई नज़रों से पारस को देख रही थी। फिर बोली, मम्मी, अगर पारस की नीयत ख़राब होती तो वो मेरे साथ आपको भी छत पर भेज देता और आपको गन पॉइंट पर जाना ही पड़ता। फिर यह तन्हाई में जरीना के साथ मनमानी कर सकता था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। इतनी सी बात मेरी समझ में पहले नहीं आई। जवाब दीजिए, आपने ऐसी शर्मनाक हरकत क्यों की? खानम ने परेशान होकर कहा, बकवास मत करो, तुम्हारा बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और इधर तुम अपना दुखड़ा रो रही हो। पहले अपने बाप के पास चलो। यास्मीना पारस के पास आई, फिर गले का हार बनकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं मम्मी के बहकाने में आ गई थी। पारस ने कहा, किमी, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसे दूर करो। किमी ने यास्मीना के बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक झटका दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखती हुई अलग हो गई। पारस ने कहा, मैं मानता हूं तुम बहक गई थी, तुम्हारा ज्यादा कसूर नहीं है, लेकिन तमाम जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ लड़की को नहीं, उसके खानदान को भी देखा जाता है, और मैं तुम्हारे बाप का खोखला गुरूर और माँ की बेहयाई देखता आ रहा हूं। वो दरवाजे से बाहर आया। माँ बेटियां सर झुकाकर उसके पीछे चल रही थीं। उनके पीछे किमी स्टैन गन उठाए हुए थी। वो खुली जगह पर राजी के पास आए। खानम उसके करीब जाकर उसे कुछ सहारा देना चाहती थी। अली ने उसके पांव के पास फायर किया। वो उछलकर पीछे चली गई। उसने कहा, खानम, तुम माँ बेटियां राजी से दूर रहेंगी। मैं नहीं चाहता कोई करीब जाकर उसके लिए ढाल बन जाए और ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे गोली ना मार सकूं। खानम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे शौहर पर रहम करो, ये प्यासा है, इसे मरहम पट्टी की ज़रूरत है। तुम हमारी ज़रूरत पूरी करो, हम तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेंगे। तुम क्या चाहते हो? हम हुकूमत फ्रांस से राबता कायम करना चाहते हैं। वहाँ से हमारे लिए हेलीकॉप्टर या तैयारा आएगा। हमारा एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर खुफिया पनाह गाह में है। तुम उसके ज़रिए आसपास की किसी भी हुकूमत से राबता कायम कर सकते हो। वैसे मैं चाहती हूँ तुम दोनों भाई जल्द से जल्द चले जाओ। हमारा एक हेलीकॉप्टर तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। अली ने पूछा, क्यों पारस, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब दिया, हम किसी के भी हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो माँ बेटियों को यरगमाल बनाकर ले जाएंगे, ताकि परवाज़ करते ही उनके वफादार हेलीकॉप्टर को तबाह ना कर सकें। खानम ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, राजी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। हम तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाएंगे, इटली के जनूबी साहिल पर छोड़ देंगे। तुम अपनी बेटियों के साथ बखैरियत वापस आ जाओगी। तुम मेरी दोनों बेटियों को ले जाओ। मुझे यकीन है मेरी बेटियां खैरियत से वापस आएंगी। तुम दोनों एक शरीफ और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। मेरी बच्चियों की इज्जत पर आंच नहीं। वो कहते कहते पारस को देख कर रुक गई। पारस ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे इसी जजीरे की पनाहगाह के एक मोर्चे में जरीना की इज्जत पर हाथ डाला था। फिर तुम इसी बेहया जुबान से कैसे कह सकती हो कि जजीरे के बाहर ले जाकर हम तुम्हारी जवान लड़कियों को इज्जत आबरू से वापस आने देंगे? वो बात बदल कर बोली, खामखा बहस में वक्त ज़ाया ना करो। राजी को दवाओं और मरहम पट्टी की ज़रूरत है। अली ने कहा, वक्त तुम ज़ाया कर रही हो। तुम हमारे साथ जाने के बाद यहाँ वापस आओगी तो तुम्हारे वफादार इसकी मरहम पट्टी कर चुके होंगे। तुम्हारे जाने और आने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लगेंगे। बाजी तुम्हारे हाथों में है। मैं अपनी बात नहीं मनवा सकूंगी, लेकिन मुझे राजी के पास जाकर मशवरा करने की तो इजाज़त दो। अली ने कहा, हमने फाते की हैसियत से हुक्म दिया है और हुक्म सादिर होने के बाद किसी मशवरे की गुंजाइश नहीं हुआ करती। सलमान राजी उसी तरह घुटने टेके टूटे हुए हाथों को जानू पर रखे बैठा हुआ था। उसने तकलीफ से कराहते हुए और झुंझलाते हुए कहा, बेवकूफ़ औरत, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, तो उनसे नाकाम मुज़ाकरात करके मुझे और मौत के करीब पहुँचा रही है। उल्लू की पट्टी, जा उनके साथ, अपनी औलाद को भी ले जा। तेरे दफ़ा होने से मेरी मरहम पट्टी तो हो सकेगी। खानम ने एक अफसर से ट्रांसमीटर लेकर राबिता कायम किया, फिर एक हेलीकॉप्टर लाने का हुक्म दिया। यास्मीना ने किमी से कहा, मुझे पारस से 2 बातें करने दो। किमी ने कहा, तुम तैमूर ख़ानदान को नहीं जानती हो। इस ख़ानदान के अफराद जो कह देते हैं वो बात पत्थर की लकीर बन जाती है। जब उसने कह दिया है कि तुम्हें करीब भी ना आने दिया जाए तो फिर बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किमी, तुम औरत हो, ये बात अच्छी तरह जानती हो कि एक लड़की अपना सब कुछ जिसके हवाले करती है फिर उसके सिवा किसी दूसरे का तसव्वुर भी नहीं किया करती। मैं ऐसी लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने आज तक अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया, शायद इसलिए कि कोई मर्द मुझे जीत नहीं सका। मैं समझ गई, पारस ने तुम्हें जीत लिया है।
तुम अपने चांस में हो, इसलिए मेरा रास्ता काट रही हो। बकवास करोगी तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। मैं पारस को छोटे भाई या बेटे जैसा समझती हूँ। उसे तुम्हारे खानदान से दूर रखना मेरा फर्ज है। मैं आहनी दीवार हूँ। तुम्हारा बाप भी मुझे तोड़कर तुम्हें पारस तक नहीं पहुंचा सकेगा। वो बेबसी से दूर खड़े हुए पारस को देखने लगी। ऐसे ही वक्त मैं पारस के पास आया। वहां मेरी तवक्को के खिलाफ सिचुएशन बदली हुई थी। मेरे बेटों ने सलमान राजी समेत उसकी पूरी फैमिली को कैदी बनाया हुआ था। पारस ने पिछली रात से अब तक के हालात बताए। मैंने कहा, किमी से कहो वो सलमान राजी को गन पॉइंट पर रखे। तुम दोनों भाई एक दूसरे के करीब हो जाओ। मैं तुम्हारे जरिए अली से भी गुफ्तगू करूंगा। पारस ने किमी को मेरी हिदायत सुनाई। वो सलमान राजी को निशाने पर रखकर उससे 2 कदम के फासले पर खड़ी हो गई। दोनों बेटे करीब हो गए। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी। मैंने पारस के जरिए कहा, अली, अभी यह जजीरा छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। तुम दोनों को सिर्फ अपनी निजात का रास्ता नहीं देखना चाहिए। तुम जब चाहोगे अपनी सलाहियतों के बल पर यहाँ से निकल आओगे। अगर ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी तो हम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी मदद करेंगे। अली ने कहा, पापा, हमें कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहना है। अगर यहाँ हाथ पर हाथ धर कर ना बैठना पड़े तो मैं जजीरे में रहूँगा। तुम्हारी यहाँ काफ़ी मसरूफियात होंगी। यहाँ के दहशतगर्द लिबिया जैसे इस्लामी मुल्क में तखरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये दहशतगर्दी करने वाले ना किसी मुल्क और कौम के दुश्मन होते हैं, ना किसी से मजहबी बुग़्ज़ रखते हैं। ये सिर्फ रकम की खातिर बेगुनाहों को कत्ल करते हैं और शहरी अमनो अमान गारत करते हैं। सलमान राजी सुपर मास्टर से दुश्मनी मोल लेने के बाद अपनी फ़ौज के जवानों को भारी मुआवजा नहीं दे सकेगा। इसके लिए वो मास्क मैन से सौदेबाजी करेगा। मास्क मैन लिबिया का दोस्त है, लेकिन किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करेगा। यस पापा, बात समझ में आ गई है। हम यहाँ रहकर इन दहशतगर्दों को किसी बड़े ताकतवर मुल्क का आलाए कार नहीं बनने देंगे। पारस ने कहा, लेकिन इन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमें भारी मुआवजा अदा करते रहना होगा। मैंने कहा, हमारे लिए दौलत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इन्हें तनख्वाहदार सिपाही बनाकर रखोगे, इन्हें इनाम व कराम से नवाजते रहोगे तो ये तुम्हारे वफादार और जानिसार बन जाएंगे। इसका मतलब है हमें इस जजीरे में सलमान राजी के इक़्तिदार को ख़त्म करना होगा। वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जब ये तमाम मुसल्ला जवान तुम्हारे तनख्वाहदार होंगे तो राजी किस पर हुक्म चलाएगा, किस पर हुकूमत करेगा? अली ने कहा, दुरुस्त है। कोई मुल्क हो या जजीरा, वहाँ की फ़ौज जिसके कंट्रोल में होगी वही उस इलाके का हुक्मरान होगा, और हमें सुपर मास्टर के बाद मास्क मैन को यहाँ का कंट्रोल संभालने का मौका नहीं देना चाहिए। पारस ने सोच के ज़रिए कहा, पापा, मैं समझता हूँ यास्मीना अपनी बहन और माँ बाप से मुख्तलिफ है। उनकी बेहयाई देखकर मुझे ख्याल आया कि यास्मीना पर भी उनका असर होगा। आइंदा वो भी किसी मौके पर बेहयाई का मुजाहिरा कर सकती है, क्योंकि इस ख़ानदान के अफराद रह रह कर अपना मिजाज और अपना रवैया बदलते रहते हैं। ये सोचकर मैं उससे नफ़रत ज़ाहिर करने लगा हूँ, मगर दिल कहता है मैं उससे नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम अली के साथ उनके सामने अभी फ़ैसला बदलो। मैं यास्मीना के मुतल्लिक सही मालूमात हासिल करता हूँ। हेलीकॉप्टर कुछ दूर आकर उतर गया था। खानम ने कहा, अली, मैं अपनी बेटियों को लेकर तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। आओ, देर ना करो, राजी को मेडिकल एड मिलने दो। अली ने कहा, ज़रा सब्र करो, अभी हम कुछ अहम फ़ैसले कर रहे हैं। क्या यहाँ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और प्लास्टर करने वाले डॉक्टर हैं? खानम ने कहा, यहाँ हर तरह का इलाज होता है। हमारे यहाँ निहायत तजर्बाकार डॉक्टर हैं। मैंने उसकी उंगलियाँ तोड़ी हैं। अपनी आंखों के सामने इसका इलाज करवाऊंगा, फिर जाऊंगा। वो परेशान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? तुम लोग जब तक रहोगे हमें राजी के करीब नहीं जाने दोगे। अगर अपनी खुफिया पनाहगाह में इसका इलाज करवाओगी तो तुम माँ बेटियाँ इससे आज़ादी के साथ मिल सकोगी। इस पनाहगाह में हम भी रहेंगे। हमारी इजाज़त के बगैर कोई मुलाजिम या अफसर अंदर नहीं आएगा। सलमान राजी ने फिर तकलीफ से परेशान होकर झुंझलाते हुए कहा, बहस मत करो, ये जो कहते हैं मान लो। डॉक्टर को फ़ौरन यहाँ बुलाओ। अली ने करीब जाकर रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और हेलीकॉप्टर में चलकर बैठो। तुम्हारा इलाज खुफिया पनाहगाह में होगा। वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। किसी को करीब आकर सहारा देने की इजाज़त नहीं थी। पहले अली हेलीकॉप्टर के अंदर गया, फिर राजी को अंदर आने के लिए सहारा दिया। उसके बाद खानम, उसकी बेटियां किमी और पारस आकर बैठ गए। मैं यास्मीना के दिमाग में आया, वो सांस रोकना चाहती थी। मैंने कहा, मैं फरहाद हूँ। उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूँ? तुम कोई दुश्मन भी तो हो सकते हो।
فی الحال اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی خیال خوانی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پارس کو دیکھا، پھر کہا، آپ ان کے پاپا ہیں تو نہ جائیں۔ آپ کے آنے سے مجھ ڈوبنے والی کو سہارا مل رہا ہے۔ مجھے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، تم تھوڑی دیر خاموش رہو، میں تمہارے دماغ میں رہ کر سچ اور جھوٹ کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی مگر شرماتی رہی کہ شاید میں پارس کے لیے اس کے جذبات کو پڑھ رہا ہوں۔ میں اس کے چور خیالات اور چور ارادے پڑھ رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ پارس کے لیے آئینے کی طرح صاف تھا۔ وہ ایک بار اس کے کردار پر شبہ کر کے پچھتا رہی تھی اور اس کے چور ارادے بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی آزمائشی موقع پر پارس کی خاطر اپنے ماں باپ کی جانی دشمن بن جائے گی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔